नमस्कार सकल के हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट दिसंबर 2024 कब होने वाला है। आप लोग टाइटल एंड थंबनेल को देख के प्लीज समझ जाइएगा और ये वीडियो को पूरे देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलने वाले हैं। बंगाली एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में कहूँगी, पहले मैं बंगाली में कहूँगी फिर बाद में हिंदी में। सो आप अपनी जो चीज़ मतलब जो भाषा आपको इजी लगते हैं, समझ में ज़्यादा आते हैं वो देखिए, अगर दोनों समझ में आते हैं तो दोनों में ही देखिए। और ऐसे वीडियोस के लिए आप लोगों को क्या करनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपसे कोई अपडेट्स मिस ना हो। এখন এখানে বলার হলো যে আমাদের আপকামিং এক্সাম ইউজিসি নেট ডিসেম্বর 2024 কবে হবে, সবার মনে এই প্রশ্ন। তো এই নিয়ে এই পর্যন্ত আমি কোনো ভিডিও বানাইনি, কিন্তু আমার মনের ধারণা ছিল গত এক সপ্তাহ থেকে যে হ্যাঁ আমি এই বিষয়ের উপর একটা তো ভিডিও ডেফিনেটলি বানাবো, কারণ সবার মনের মধ্যে এটা নিয়ে একটা প্রশ্ন কিউরিওসিটি আছে, আর যেটা খুবই স্বাভাবিক। তো এক্সাম কবে হবে বা হতে পারে, একদম সত্য কথা, একদম যেটা বলতে গেলে ধ্রুব সত্য কথা, সেটা হচ্ছে যে কেউ জানে না এক্সাম কবে হবে, হয়তো বা এনটিও জানে না। কারণ হচ্ছে যে এক্সাম কবে হবে, কি হবে, মানে এক্সাম নেওয়া হবে কখন না হবে, সেটা অনেক কিছু বিষয়ের উপর ডিপেন্ড করছে। তো ওটা ওই বিষয়টা এনটিএ ইউজিসি এনাদের বিষয়, অবভিয়াসলি এনটিএ, তো ওনারা ঠিক করবেন, অবশ্যই ঠিক করবেন। কিন্তু অনেক কিছু বিষয় আমাদের বাস্তব জীবনে যেরকম আছে, যারা যে পজিশনে যে দায়িত্বে আছেন, যে কাজ করছেন, প্রত্যেকেই নিজের নিজের বিষয়টা অবশ্যই বুঝে শুনে করার চেষ্টা করেন, কিন্তু আমরা কেউই জানি না যে ফর্চুনেটলি অর আনফর্চুনেটলি কখন যে কি হয়ে যাবে, কি হবে কি হবে না। সবটা আমাদের হাতে যদি থাকতো তাহলে তো কোনো সমস্যাই হতো না, তাই না? বাই দ্য ওয়ে, এখন আমি কয়েকটা সম্ভাবনা দেখাবো, পসিবিলিটি, প্রবাবিলিটি, যেটা হতে পারে, হবে এরম নয়, হতে পারে। তো নাম্বার 1, আজকে 15 নভেম্বর আমি ভিডিওটা বানাচ্ছি, কিন্তু ভিডিওটা আজকে যাবে না, আগামীকাল নয়তো পরশু নাগাদ আমি ভিডিওটা আপলোড করব, কারণ আমাদের যে প্রিভিয়াস যে কোয়েশ্চেন্স চলছে সেটা নিয়ে আমি ভিডিও দিচ্ছি, তো সেই বিষয় নিয়ে হয়তো আগামীকাল আরেকটা ভিডিও দেবো, তারপরে এই ভিডিওটা পাবলিশ করব। যাই হোক, তো বিষয় হচ্ছে যে পরীক্ষা ডিসেম্বরে হওয়ার সম্ভাবনা যেটা আমরা দেখছি, যে দিন দিন যত কমে আসছে, ডিসেম্বর আসার যে দিনগুলো ঘনিয়ে আসছে, মনে হচ্ছে যে এক্সাম যেন ডিসেম্বরে নেওয়া বা হওয়ার সম্ভাবনা আমরা কম দেখতে পাচ্ছি। নভেম্বরের আজকে 15 তারিখ, 21 ও 22 নভেম্বর পর্যন্ত আমরা ওয়েট করব। ইট মিনস যে আমরা আরও এক সপ্তাহ বা 10 দিন অপেক্ষা করব। এর মধ্যে যদি কোনোরূপ নোটিশ ওনারা না দেন ফর্ম ফিল রিলেটেড, তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে থার্ড উইক, ফোর্থ উইকেও গিয়ে যদি আমরা কোনো নোটিশ না পাই নভেম্বরে, তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে ডিসেম্বরে এক্সাম হওয়ার সম্ভাবনাটা অনেকটা কমে যাচ্ছে। তখন আর কি কি প্রবাবিলিটি আছে, আরেকটা হলো যে এক্সাম ডিসেম্বরের 20 ডিসেম্বরের এন্ডেও যদি শুরু হয়, তাও একটা চান্স এখনো পর্যন্ত আছে। যদি এনটিএ আজকে 15, তো নেক্সট 20 or 21, 22 নভেম্বরের মধ্যে নোটিশ দিয়ে দেন, তাহলে একটা সম্ভাবনা আছে যে উইদিন 1 মান্থ ওনারা চাইলেই পুরো এক্সামের যে প্রসেস কমপ্লিট করতে পারেন এবং এক্সাম নিয়েও নিতে পারেন, ওনারা পারেন। কারণ আমরা 2023-এ ওনাদেরকে দেখেছি যে ওনারা 3টে এক্সাম নিয়েছেন, তো সেরকমই ওনাদের নেওয়ার মতো সম্ভাবনা তো ডেফিনেটলি আছে, কিন্তু কী হবে আমরা জানি না। তো নভেম্বরে 21 নভেম্বর 22 নভেম্বরের মধ্যে যদি কোনো নোটিশ আমরা না পাই, তাহলে আমরা বুঝে নিতে পারি যে ডিসেম্বরের শেষের দিকে গিয়েও এক্সাম হয়তো আর 2024-এ হচ্ছে না বা হবে না, সেটা গিয়ে দাঁড়াবে জানুয়ারিতে। সম্ভাবনা জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারি, আর জানি না আমরা, ওনাদের ইচ্ছে, কিন্তু সম্ভাবনা। আর আরেকটা কি হচ্ছে যে আদারওয়াইজ আরেকটা প্রবাবিলিটি, তাহলে কি এক্সাম মার্জড হতে পারে, মানে জুন 2025 অ্যান্ড ডিসেম্বর 2024, যখন কোভিড-19 সিচুয়েশনের পর 2023-এ আমরা দেখেছি 3টে এক্সাম নিতে এনটিএকে, সেরকম কি কিছু হতে পারে? মার্জড আমরা 20-তে কোভিড-19 হওয়ার জন্য 20, 21, 22-এ আমরা দেখেছি মার্জড হয়ে এসেছে, মানে দুটো সাইকেলকে একসঙ্গে নিয়েছিলেন, জুন অ্যান্ড ডিসেম্বর যে সাইকেল, সেটা একসঙ্গে এক্সাম হয়েছিল। সেটা কি হতে পারে? হ্যাঁ, যদি বলি 99% যদি না মার্চ হয়, 1% সম্ভাবনা আছে মার্চ হলে, হতেও পারে, বাট নট শিওর। দিজ আর প্রবাবিলিটিস, এগুলো হতে পারে।
তাহলে কি তাহলে মার্চ হলে হতে পারে, এটা যদিও সম্ভাবনাটা খুব কম, যদিও যদি এক্সামটা মার্চ হয়ে হয় তাহলে কিন্তু এনটিএ এর মানে কি সুবিধাই হবে, দুটো এক্সাম একসাথে নিচ্ছেন, ওনাদের তো এক্সাম কন্ডাক্ট করানোর অবশ্যই রেসপন্সিবিলিটিস দায়িত্ব, যে যে পজিশনে আছেন, যে যে কর্তব্যের মধ্যে যুক্ত আছেন, ওনারাই জানেন ওই কাজের কতটা প্রেশার বা কতটা কি সামলাতে হচ্ছে না হচ্ছে। প্রত্যেকে আমরা নিজেদের জীবনের ছোট ছোট বড় বড় যাই প্রবলেম হোক সেটাকেই আমরা সবসময় হিউজ বা একটা বড় আকারে দেখার চেষ্টা করি, অন্যদের জীবনের সুবিধা অসুবিধাটা আমরা মানব জাতির যেটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অভ্যেস যে আমরা কমই লক্ষ্য করতে চাই, নিজেরটাকেই বেশি করে দেখানোর বা দেখার চেষ্টা করে থাকি, বাট দিস ইজ নট রাইট। কারণ হচ্ছে যে সবার জীবনেই সমস্যা আছে, তো সেটা যে যেই পজিশনেই কাজ করুক না কেন প্রত্যেকেরই দায়িত্ব আছে, প্রত্যেকেরই দোষ গুণ ত্রুটি ভালো মন্দ মিলেমিশে। তো এই হলো বিষয়। আর এক কি হচ্ছে যে নিট হোক বা নেট হোক বা জেই হোক, এই যে বড় বড় এক্সামগুলো নেওয়া হয়, ওনারা বলেছিলেন কোভিড-19 যেমন 20 থেকে এলো, 2018 ডিসেম্বর থেকে যখন এনটিএ অনলাইন এক্সাম নিতে শুরু করলেন তখন থেকে আজ পর্যন্ত ওনারা এক্সাম নিচ্ছেন, কিন্তু কোথাও না কোথাও কিছু মানে একটা নতুন দায়িত্বে কর্তব্যে আসলে ভুল ত্রুটি সবার দ্বারাই হয়, কিছু আমরা রিউমার্স হোক সত্য হোক অনেক কিছু বাধা বিঘ্ন পরীক্ষার মধ্যে দেখতে পেয়েছি, নট অনলি নিট আর তো আদার্স এক্সামে আমরা দেখেছি ওনাদের নেওয়া এক্সামে ঠিকমতো এক্সাম কন্ডাক্ট হচ্ছে না, ঠিকমতো শিডিউলই হচ্ছে না, কিন্তু ওনারা এটাও কথা দিয়েছিলেন যে ওনারা আগের বছর মানে 2025 সালের এক্সামের যে শিডিউল সেটা 24 সালেই জানিয়ে দেবেন, 24-এর শেষে আমরা জুনের 2025-এর জুনে কখন এক্সাম হবে, কোন কোন এক্সাম হবে সেই শিডিউল ওনারা লঞ্চ করে দেবেন, কিন্তু সেটা ওনারা করতে পারেননি। কিন্তু এর আগে আমরা একটা দেখেছিলাম যে ওনারা আগেই দিয়ে দিয়েছিলেন যে যেমন রিনেট এক্সামটা বা তার আগে কোনটা কবে হতে পারে, আমরা কিছুদিন মানে যখন দেননি তো দেননি, যখন দিয়েছিলেন তো আমরা বেশ একটা শিডিউল অনুযায়ী পেয়েছিলাম, সেটাও সত্য। আবার ওনারা বলেছিলেন যে 25-এ কোন কোন এক্সাম ওনারা যারা যে এক্সাম কন্ডাক্ট করেন সেগুলো কি কি হবে ওনারা শিডিউল দিয়ে দিবেন আগেই, মানে এক্সামের 6 মাস 8 মাস 1 বছর হাতে থাকাতেই দিয়ে দিবেন, কিন্তু সেটা আমরা পাইনি। তো যাই হোক, এখন ওনারা বলেছিলেন আমরা পাইনি, ইটস ওকে, কিন্তু সম্ভাবনা থাকছে যে এক্সাম নভেম্বরের 22-এর মধ্যে যদি আমরা কোনোরূপ নোটিশ না পাই তাহলে ধরে নিতে হবে যে এক্সাম ডিসেম্বরের শেষে না হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। যদি নোটিশ পেয়ে যায় তাহলে ওনারা এক্সাম ডিসেম্বরের শেষে শুরু করে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে শেষ করে দিতে পারেন, ওনাদের মধ্যে সেটা করার মতো প্রবাবিলিটি পসিবিলিটি এবং রেসপন্সিবিলিটি সব কিছু আছে এবং ওনারা করে দেখাতেও পারেন। এবং এটা হতে পারে যে এক্সাম জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারির দিকে চলে যাচ্ছে, কিন্তু ফেব্রুয়ারিতে আরেকটা এক্সাম আছে গেট 2 সপ্তাহ জুড়ে হয়, প্রথম 2 সপ্তাহের বা ফেব্রুয়ারির প্রথম 2 সপ্তাহে শনি রবি, পরের সেকেন্ড উইকের শনি রবি, এই দুটো বাদ দিয়ে ওনাদের ডেট নিতে হবে যদি ওনারা এক্সাম কন্ডাক্ট করেন ফেব্রুয়ারিতে, সেটাও ওনাদের মাথায় রাখতে হবে। কারণ যখন কোনো একটা বড় মানে একটা হিউজ লেভেলে ন্যাশনাল লেভেলের এক্সাম হয় এবং ক্যান্ডিডেট প্রচুর হয়, সেক্ষেত্রে যে কোনো অথরিটি গভর্নিং বডিকে কী করতে হয় সেই এক্সাম শিডিউলগুলোকে বাদ দিয়ে আলাদা শিডিউল বানাতে হয়। এটা অবশ্যই যেমন আমরা নিজেদের জীবনেও করে থাকি যে বাড়িতে কোনো অসুবিধা থাকলে সেই কাজটা কারোর দ্বারা গ্যাপটা নিজেদের মধ্যে আমরা গ্যাপটা পূরণ করে নিই, তো ঠিক সেরকমই। তো সেটা একটা বিষয় আছে। এখন এক্সাম জানুয়ারিতে হবে ফেব্রুয়ারিতে হবে এটাও সম্ভাবনা আছে, এক্সাম ডিসেম্বরের লাস্ট উইকে গিয়েও মানে 20 ডিসেম্বরের পর থেকে ওনারা চাইলেও নিতে পারেন, 7 দিন 10 দিনের মধ্যে এক্সাম নিয়ে কমপ্লিট করে দিতে পারেন, আবার চাইলে ওনারা এক্সাম মার্চ করেও দিতে পারেন, এটা সম্পূর্ণ ওনাদের ব্যাপার। এগুলো আমি যেগুলো বললাম সব প্রবাবিলিটি। আর একদম চাচা চলা সত্য কথা যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে কেউ বলতে পারবে না এক্সাম কবে হবে, না ডিসেম্বর না জানুয়ারি না ফেব্রুয়ারি না মার্চ, কেউ এক্স্যাক্ট বলতে পারবে না। আমরা শুধু প্রেডিক্ট করতে পারি, অ্যাজিউম করতে পারি, বাট এটা ফিক্সড নয়, কারণ লাইফ ইজ নট ফিক্সড, এখানে কোনো কিছু কনস্ট্যান্ট নয়। Change is the constant thing in this whole universe. I always repeat this sentence, repeat this thing, কারণ এটাই সত্য যে পরিবর্তনশীল এই জগৎ, পরিবর্তনই একমাত্র চিরন্তন সত্য, এছাড়া আর কিছুই নয়, তাই না? তো এখানে আমরা এগুলো বলতে পারি। এখন আমি হিন্দিতে বলছি, হিন্দিতে বলার পর ভিডিওটাকে এন্ড করছি। मुझे आप लोगों को यही बोलनी है कि हर एक के मन में अब एक ही सवाल है, वो कि 2024 के दिसंबर साइकिल के यूजीसी नेट के एग्जाम कब होंगे। अगर मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में एकदम ऑनेस्टी के साथ एक सही बात बोलूं तो किसी को भी नहीं पता कि एग्जाम कब होने वाला है, ना मुझे ना आपको, शायद एनटीए को भी नहीं पता, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि हमारी जो लाइफ है पूरे अनसर्टेनिटी के साथ घिरे हुए हैं और फुल ऑफ सरप्राइजेस पैकेज के साथ हमारी लाइफ है। कभी हमें खुशी दे जाते हैं कुछ इंसिडेंट्स के द्वारा, कभी हमें गम दे जाते हैं कुछ इंसिडेंट्स के द्वारा, लेकिन ह्यूमन बीइंग है, हमें
सभी चीज़ों के साथ उलझना पड़ता है, सुलझाना पड़ता है और ज़िंदगी को आगे लेके जाना पड़ता है। यही नेचर और यही नियम है, रीति है, नीति है, यही लाइफ है। तो क्योंकि आप लोगों को पता है हमारे लाइफ में हम लोग जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हम ह्यूमन बीइंग के एक नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है कि हम अपने छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी सभी प्रॉब्लम्स को खुद अपने आंखों से बहुत बढ़िया तरीके से देखते हैं, दूसरों को भी दिखाते हैं मेरी लाइफ में ये है, वो है, वो है। ऐसे लगता है कि किसी और के लाइफ में प्रॉब्लम है ही नहीं। ह्यूमन बीइंग हो तो सफरिंग तो है, क्योंकि सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छे बुरे प्रॉब्लम्स सब कुछ रहते हैं। तो एनटीए को भी पता क्या है, नहीं पता है। एनटीए को भी पता नहीं है कब एग्जाम, अगर उन्हें पता होता तो मुझे लगता है कि वो लोग दे ही देते। यस, उन लोगों का ये ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो लोग इस चीज़ पे काम करता है, वो गवर्निंग बॉडी है, अथॉरिटी है इसी एग्जाम को कॉन्टेक्ट कराना, उनके लास्ट 5 साल 6 साल से रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 2018 से ऑनलाइन एग्जाम वो एनटीए ही कंडक्ट करवा रहे। हाँ, कब हम इंसान हैं, हमसे भी गलती होते हैं, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिए हैं। उन लोगों ने बहुत सारी गलतियाँ की है, नीट के हो, नेट के हो, कोई अदर्स एग्जाम्स के बारे में हो जो वो लोग कंडक्ट कराते हैं, हो चुके हैं। और कभी उन्होंने एक साल में 3 एग्जाम भी लिए, मतलब 2023 में उन्होंने 3 एग्जाम लेकर प्रूफ कर दी कि येस वी आर कैपेबल टू डू एनीथिंग। उन्होंने दिखा दिया कि हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो ट्रू, उन्होंने प्रूफ भी कर दी। और उन्होंने ही कुछ एग्जाम के ठीक से शेड्यूल ना देना, एग्जाम ठीक टाइम पे कंडक्ट ना करवाना, एग्जाम हॉल में गड़बड़ी हो जाना, एग्जाम के रीनेट हो जाना, ये भी हुए हैं उनके द्वारा। और ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है कि ये नहीं हो सकता, ये हो सकता। हम लोगों को ये पता है कि हमारी लाइफ में क्या क्या हम कर सकते हैं, हम उसके बेसिस पर काम करते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कब क्या इंसिडेंट और एक्सीडेंट घट जाए और क्या दुर्घटना हो जाए किसके साथ। कोई नहीं चाहता है किसी की लाइफ में कोई भी खराब कुछ हो, लेकिन ये तो हम भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं ना। लाइक दैट पॉसिबिलिटी, यहाँ पे मैं जो कहूँगी ये सारी चीज़ें प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर है। नॉट दीज आर नॉट फिक्स्ड, दीज आर नॉट कांस्टेंट। ओके, ये एकदम फिक्स तो नहीं है, ये एकदम होने वाला है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मैं ह्यूमन बीइंग हूँ। और मैं जस्ट मुझे अभी तक मुझे लगा मैं इस पर कोई भी वीडियो नहीं लाई। लास्ट 1 वीक से मुझे लगा कि मुझे इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि बच्चों के मन में प्रश्न है, तो मैं भी इसके बारे में कुछ बात करूँ। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो लेकर आऊँ, तो मैंने लेकर आई। और मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बात करूँगी, क्या क्या हो सकते हैं, क्या होंगे एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। अगर ऐसे फेक न्यूज़ मुझे तो फैलानी नहीं है, क्योंकि मेरी जो लाइफ के जो रूल्स है, मेरी जो थिंकिंग है, आइडियाज, थॉट्स है, कॉन्सेप्ट्स है, प्रोसेस है, इस पे ये नहीं है, ये मेरी डिक्शनरी में नहीं है कि मैं किसी को एकदम बिना जाने, बिना पहचाने, बिना जाने, बिना श्योरिटी के साथ मैं कुछ भी दावा कर दूं और कह दूं। ये तो मेरी रूल्स के अगेंस्ट है। तो मुझे ये कहनी है कि आप लोग और हम लोग सभी लोग वेट करेंगे 22 21 नवंबर तक कि कोई नोटिस आ जाए। अगर कोई नोटिस 22, 23, 21 टू 23 नवंबर के बीच में नहीं आते हैं, कोई न्यू नोटिस एग्जाम से रिलेटेड, तो हम ये कह सकते हैं कि दिसंबर के एंड के तक भी इस एग्जाम को लेना पॉसिबल नहीं है, दिख रहे हैं। तो अगर कोई नोटिस आते हैं 21 दिसंबर को या फिर उसके बाद, तो हमें पता चल जाएंगे, तब हम कोई अलग वीडियो लेकर डिस्कस करेंगे, लाएंगे उससे रिलेटेड। अगर नहीं आते हैं तो एग्जाम दिसंबर के एंड में होने के चांसेस भी बहुत कम दिख रहे हैं। नंबर 1 प्रोबेबिलिटी। नंबर 2, एग्जाम जनवरी में भी हो सकता है, एग्जाम फेब में भी हो सकता है, मतलब फरवरी में। लेकिन फरवरी में गेट एग्जाम है जो कि ऑलरेडी बुक्ड है शेड्यूल, मतलब सैटरडे संडे फर्स्ट एंड सेकेंड वीक जो होते हैं फरवरी मंथ के 2 वीक्स, वहाँ पे एग्जाम है गेट के। तो ये गेट भी बहुत बड़ी एग्जाम है एंड बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स यहाँ पे फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देते हैं। तो उस डेट को छोड़कर अगर एनटीए को फेब में अगर एग्जाम लेनी है नेट को, तो उनको वो 4 डेट्स को छोड़ के एग्जाम लेनी होगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये कोलैबोरेटिवली ही वर्क की जाती है। यही ह्यूमन बीइंग और यही नेचर, यही हमारी सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इसको हम विथड्रॉ नहीं कर सकते।
ओके फिर और क्या है कि क्या मर्ज ऑप्शन 3 प्रोबेबिलिटी दैट इज क्या एग्जाम मर्ज हो सकते हैं जून के साथ 24 के दिसंबर एंड 2025 के जून के मर्ज हो सकते हैं। मैं कह सकती हूँ 100% में से 99% तो प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी मुझे नहीं दिख रही, 1% में हो सकते हैं कि मर्ज हो जाए, हो सकते हैं। मैं दावा नहीं कर सकती और ये कंफर्म भी नहीं, लेकिन हो सकते हैं। होने को तो कुछ भी हो सकता है, नहीं होने को तो कुछ भी नहीं हो सकते हैं, तो हो सकता है। ये 3 प्रोबेबिलिटी मैंने आपसे शेयर की। और किसी को भी नहीं पता एग्जाम कब होने वाले हैं, फॉर्म कब निकलने वाले हैं, किसी को नहीं पता। मुझे तो लगता है इस वक्त एनटीए को भी नहीं पता है, क्योंकि एनटीए को भी अपने टीम के साथ बैठनी होगी, बातें करनी होगी, डिसीजन लेनी होगी, और उसके बाद ही हमें पता चलेगी नोटिस के द्वारा। ओके फिर और क्या 2023 में उन्होंने 3 एग्जाम ली और कोविड के सिचुएशन के जो हमें हुए वो उन्होंने गैप फील कर दी। फिर क्या हुआ एग्जाम को लेकर, नेट हो बहुत कुछ गड़बड़ी भी हुई। उन्होंने ट्राई भी की, उसको सॉल्यूशन देने की कोशिश भी की, उन्होंने की। फिर उन्होंने कहा था कि 2025 में क्या क्या एग्जाम होंगे उसके शेड्यूल हमें 2024 में ही मिल जाएंगे। मतलब 6 मंथ 8 मंथ्स और 12 मंथ्स पहले ही हमें पता चल जाएगा कि नेक्स्ट ईयर में कब किस दिन से किस दिन के बीच में फॉर्म फिल एग्जाम होने वाले हैं। लेकिन नहीं दी उन्होंने अपनी जो बातें कही थी वो नहीं रख पाई। इट्स ओके लेकिन पहले हमें ये कैंसिल वाला ऑफलाइन एग्जाम से पहले हमें पता चला था कि ये एग्जाम, ये CSIR नेट, UGC नेट और ये जो एग्जाम होने वाला है, इनके बारे में भी हमें जब उन्होंने नोटिस नहीं दी तो नहीं दी, जब उन्होंने नोटिस दी तो हमें बहुत अच्छे तरीके से भी दी। तो उन्होंने दिखाया, अच्छे तरीका काम भी दिखाया, गड़बड़ी भी दिखाई, और किसी को नहीं पता कब क्या होने वाले हैं। और अगर हम अपने लाइफ को खुद को ब्लेम करेंगे और एनटीए को ब्लेम करेंगे, अगर ये ब्लेम गेम हम करते रहेंगे और फेक न्यूज़ बनाते रहेंगे और दूसरों को फेक न्यूज़ के द्वारा प्रभावित करते रहेंगे, तो ना हमारे कुछ फायदे होंगे ना दूसरों का। क्योंकि अगर मतलब फेक या फिर फॉल्स या झूठ के ऊपर कोई भी चीज़ बनी हो तो उसके बुनियादी अगर झूठी हो तो वो ज़्यादातर स्टे नहीं कर सकते। चाहे वो कोई जॉब हो, कोई इंसान हो, कोई काम हो, कुछ भी झूठ के बुनियाद पर ज़्यादा दिन नहीं टिक सकते। ज़्यादा दिन टिकने हैं, कष्ट होंगे, प्रॉब्लम होंगे, सफरिंग होंगे, लेकिन ऑनेस्टी के बेसिस पर अगर आपने कुछ बनाया है तो वो टिकने वाले चीज़ है। उसमें संघर्ष होंगे, बहुत कुछ आएंगे, ऐसे झोंका आएंगे, वैसे हवा आएंगे, बहुत कुछ ज़िंदगी में उतर चढ़ाव आएंगे, लेकिन आप अपनी जगह पे टिके रहोगे। यही झूठ और सच के अंतर है। जो जितने जल्दी समझ जाए उनका उतना जल्दी लाइफ में, अपने पर्सनालिटी में, अपने काम में ग्रो होने के संभावना बहुत ज़्यादा है और होंगे ही। अगर आप सच पे चल रहे हो और सच पे बुनियाद पर आपके लाइफ काम चल रहे हैं तो आप कभी झुक नहीं सकते किसी के आगे, क्योंकि ये नेचर की लॉ है, ये नेचर की रूल्स है। आपको किसी के आगे झुकने ही नहीं देंगे। आप झुके उससे पहले आपको वो सर फिर से ऊंचा कर देंगे। यही सच और झूठ के बीच में अंतर है। सो बाय द वे मैंने या इसके साथ साथ कुछ लाइफ के लेसन्स भी देने लगे। नॉट लाइफ के लेसन्स, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ाई करेंगे, एग्ज़ाम क्लियर करनी है, मार्क्स लेनी है, एवरीथिंग इज़ ओके, बट साथ में हमें एक बेहतरीन इंसान बननी है, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करनी है ना। तो दैट इज़ फॉर टुडे। क्योंकि मैंने किसी के बारे में यहाँ पे कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं की, लेकिन मैंने सच कहने की कोशिश की। ह्यूमन बीइंग के साथ एनटीए को भी रिलेट कर दी, क्योंकि हम अगर इस पे ही फोकस करेंगे, वो लोग ऐसे हैं, क्यों नहीं निकल रहे हैं, उनके द्वारा ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ये अगर ब्लेम करते रहेंगे तो हमारे दिमाग में यही रहेंगे। अगर आप उससे हट के ऐसे सोचो कि जब आने वाला आएंगे, हम हमारी पढ़ाई को शुरू करते हैं, आज ज़्यादा मन नहीं कर रहे, थोड़े थोड़े करके पढ़ना स्टार्ट कर दो, एग्ज़ाम आने तक बहुत कुछ हो जाएंगे। तो हम अपने आप को बेहतरीन बनाने की, खुद के थॉट्स को, पढ़ाई को, लाइफ को खुद बेहतरीन बनाने कि हर एक कोशिश थोड़ी छोटी छोटी करके हम कर सकते हैं। लेकिन हम अगर ब्लेम करते रहेंगे एक दूसरे को, खुद को, अदर्स को, तो यही चलते रहेंगे, है ना। तो हम उस पर फोकस ना करके अपने काम पे, अपनी अच्छी चीज़ों पे जो हमको बेहतरीन बना सकते हैं उस पर फोकस करेंगे तो ज़्यादा हम सही काम करेंगे, है ना। तो दैट्स इट फॉर टुडे। नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन। सभी को नमस्ते, সকলকে নমস্কার। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন এসবি লিটারেচার। আমি যতটা সম্ভব যেভাবে বলার বলেছি
করেছি এবং এগুলো ছাড়াও ভবিষ্যতে আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও নিয়ে আসছি, যেগুলো আমার মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে দেওয়াটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন সলভ করবো, সব কিছু পড়াশোনার রিলেটেড, এক্সাম ক্লিয়ার করার থেকে শুরু করে সবই ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু কিছু ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশনও সঠিক সময় দেওয়াটাও খুব ইম্পর্টেন্ট, যাতে করে আমরা আমাদের কাজের সঙ্গে এবং আমাদের মাইন্ডের সঙ্গে স্টেবল থাকতে পারি। এখানে ওখানে অনেক কিছু খবর দেখে নিজেকে যেন আমরা विचलित করে না তুলি, তাই না? तो मुझे यही कहनी है कि मुझे लगा इस टाइम पे ये वीडियो बहुत तक ज़रूरी थी खुद के लिए, एसबी लिटरेचर के ऑडियंस के लिए, एसबी लिटरेचर के फैमिली मेम्बर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो सब्सक्राइबर है, जो लर्नर है, जो ऑडियंस है, वो हमारी फैमिली ही है। तो सब इसके साथ आदर्श बच्चों की अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं भी की, उनको उनके पास ये वीडियो पहुँच जाते हैं, उनका भी अगर कुछ हेल्प हो रहा है, यही हमारी ये वीडियो बनाने का मोटिव, मतलब सार्थक हुआ, सक्सेस हुआ वीडियो बनाने का। तो मुझे यही कहने है कि हम लोग ये र्यूमर्स, ये झूठे ये न्यूज़ के बारे में ना देखें, अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, ध्यान दें, और जब होने वाला होंगे और खुद को आप स्टेबल रखो। कोई किसी ने कुछ कह दिया, पैनिक में मत आओ, टेंशन मत करो, ऐसी चीज़ें करने से आपका हेल्थ ख़राब होगा, आपका पढ़ाई पीछे जाएंगे। तो आप खुद पे फोकस करो और अच्छी चीज़ों पे काम करो, और आप सिर्फ पढ़ाई मत करो, लाइफ में और भी हॉबीज़ हैं, और आपको जो भी अच्छा लगे वो करो, घूमो, फैमिली के साथ खाओ, घूमने जाओ, गार्डनिंग, कुछ भी अगर आपकी हॉबीज़ हो, पढ़ो, खेलो, नाचो, गाओ, जो भी आपको अच्छा लगे करो, लेकिन फाइनली अपने जो काम है फ्यूचर में करना, उस पर भी फोकस करो। ओके, नमस्ते सभी को, गुड नाइट। और लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एसबी लिटरेचर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रचुर परिमाणे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना एसबी लिटरेचर के। नमस्कार, भारत को सुनते हो, देखते हो एसबी लिटरेचर। अगर आपका कोई भी मतलब कोई भी अच्छे बुरे कोई भी इन्फॉर्मेशन से, कोई भी आपके मन में क्यूरियोसिटी, कोई भी क्वेश्चन हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दे देना, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर बात करूंगी और आप लोगों को ज़रूर आपका आंसर्स दूंगी, टाइम लूँगी। जो जैसे क्वेश्चंस करेंगे, जैसे चीज़ों के बारे में पूछेंगे, मैं पर खुद पढ़ाई करके लाऊंगी, लेकिन डेफिनेटली मैं आंसर करती हूँ, करूँगी, और इन फ्यूचर में करते रहेंगे। नमस्ते।